The Muslim world has erupted in anger. India not untouched by the flames that singe the Islamic world in general. India has a sizable Shia Muslim population. There are protests that are being reported from Lucknow. Now, Kargil in Ladakh and Lucknow in Uttar Pradesh are two pockets of a sizable Shia Muslim population, and the images that you see on your television screen, very peaceful though. Very peaceful protests that are being reported from Lucknow. People have taken to the streets in Lucknow against the killing of Ayatollah Ali Khamenei. I want to cut across to Santosh for more on this. Santosh, there's anger and anguish in Lucknow. Bring us a sense of what people are telling you. As we are seeing the anger and the anguish of the Lucknow people, especially the Shia community, you can see through the visual that how the protesters coming on the road, and they are claiming that this Ayatollah Khamenei as their supreme leader. He was not only the leader of Iran only, he was the supreme leader of the whole Muslim community, especially the Shia community. And you can see through the visuals that the people came on the road on the anger and the anguish of the killing of Ayatollah Khamenei. These are the visuals of the old Lucknow, you can say, a big hub of the Shia community, and they are protesting against the killing of Ayatollah Khamenei. And you can see through the visuals that many of the protesters are coming, and they say that Ayatollah Khamenei is their supreme leader. That they're not only for the Iran, even for the whole world, Islamic world. So we can say the people's coming on the street or the protests, as they say that Ayatollah Khamenei is the supreme leader, not only for the Iran, even all the whole world Islamic community. And you can see that the Shia community is on the road and they are protesting against the killing of Ayatollah Khamenei. So these are the visuals that the people came on the road as their anger, to show their anger and the anguish against America and even against Israel due to the killing of Ayatollah Khamenei. Gaurav. What is it that these people are demanding? What is it that these people want? I notice a lot of their criticism is aimed at the United States and Israel and a lot more. But what is it that they're looking at? You can see the people are protesting against the killing of the Ayatollah Khamenei. कि आप लोगों के इस विरुद्ध से क्या मांगे हैं कि क्या ये हुआ है? मांगे कोई नहीं, हमारी मांगे क्या, हमारी जुल्म के खिलाफ एक ये प्रोटेस्ट है, ये शहादत है। ये शहादत जो होती है वो जुल्म के खिलाफ दी जाती है। हम जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं। ये जीत हार का मसला नहीं है। हम लोग हमेशा, जो आमनाई साहब ने कहा है कि आप करबला की दास्तान पढ़ लीजिए, ये इंसानी जो लफ्ज हैं हार और जीत, ये हार और जीत नहीं है। जुल्म के खिलाफ हमेशा शहादत दी जाती है। आमनाई साहब ने शहादत दी है, फाते हुए हैं, वो जीत चुके हैं। हम लोग सिर्फ जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं। आप पूरी शियत को देख लीजिए, पूरी करबला को पढ़ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ अगर कहा जाए कि जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे अयतुल्ला खामनेई। जी हाँ, सिर्फ जुल्म के खिलाफ लड़ाई थी। और खामनेई साहब सिर्फ केवल एक ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे, वो पूरे शिया कौम के एक रहबर हैं। पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट हो रहा है। आप कहीं उठाकर देख लीजिए। और ये प्रोटेस्ट हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि शहीद जो होता है वो कभी मरता नहीं है। वो नहीं है, कोई और होगा। हमारे यहाँ रहबरी चलती है, हम लोग रहबर के पीछे चलते हैं। हमारा वो रहबर शहीद है, उसने जुल्म के खिलाफ एक बहुत ही शानदार, जितना उसके पास ताकत थी उस हिसाब से उसने एक जंग लड़ी है। और हम लोग अपने आप को यही मान रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल की जो नीतियां थी उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। तमाम लोग सड़कों पे उतरे हैं। बात भाई, क्या मतलब इस जिस तरीके से मारा गया अयतुल्ला खामनेई को कैसे देखिए? देखिए,
खामनेई साहब को शहादत दी गई है। और जब बातचीत हो रही थी, बातचीत का बहाना दूसरे मुल्क में जाकर बात हो रही थी और खामोशी से अटैक करके ये जुल्म है, ये सरासर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका उल्लंघन है, अमेरिका और इजराइल ने किया है। ये आतंकवाद फैलाते हैं अमेरिका और इजराइल, इनके खिलाफ गुस्सा है और शहादत तो हमारा मीरास है। यहाँ जितने भी हैं नौजवान, ये अगर मौका मिल जाए कि हक पर और मजलूमों की हिमायत के लिए अगर हमें भी शहादत करने का मौका मिले तो हम भी शहीद होने के लिए तैयार हैं और कभी भी जालिमों की हिमायत में नहीं खड़े होंगे। वही ईरान कर रहा है, खामनेई साहब कर रहे हैं। लेकिन हमें अफसोस है कि हमारा देश के प्रधानमंत्री ऐसी जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी कितने सर्व नेता थे, सर्व समाज के नेता थे, वो जिस हिमायत करते थे गाजा और फिलिस्तीन की, उसी के खिलाफ आज जाके नरेंद्र मोदी जी उसी देश में जाकर अपना स्वागत और अपना फख्र महसूस कर रहे हैं, जालिमों का साथ दे रहे हैं। इसके लिए हमें बहुत अफसोस है और हम मांग करते हैं। आप लोग गमगीन थे और मतलब ये अयतुल्ला खामनेई का जिस तरीके से शहादत हुई उसको कैसे देखते हैं, कितना बड़ा नुकसान? बिल्कुल ये इंसानियत का नुकसान है, क्योंकि सबसे ज्यादा खामनेई साहब मजलूमों के लिए लड़ रहे थे और करबला भी हमें यही सिखाता है और भारत का संविधान भी हमको सिखाता है कि हमेशा पीड़ित के साथ रहो। खामनेई साहब ने शहादत देके मजलूमों की हिमायत में शहादत दी है और ये शहादत इजराइल और अमेरिका को बर्बाद करके रहेगा। ये आप देख लीजिएगा, जिस तरह करबला में जिस तरह इमाम हुसैन को घेरा गया, यजीदी फौज ने घेरा था, उसी तरह ईरान को घेर लिया गया, मगर शहादत हो गई। इमाम हुसैन की शहादत हुई, खामनेई साहब की भी। इमाम हुसैन आज भी जिंदा है, यजीद मर गया। और मोदी जी हमें बताएं कि मोदी जी वहां क्या करने गए थे, इसको मोदी जी क्लियर करना चाहिए। जबकि हमारे देश की नीति ये है कि ईरान के साथ हमेशा रहते हैं, ईरान हमेशा भारत के साथ रहता है। सीधे से अयतुल्ला खामनेई की शहादत पर उनकी नाराजगी है कि अयतुल्ला खामनेई के जो मौत हुई है उससे सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं बल्कि इनके हिसाब से एक उनकी कम्युनिटी के लिए, इस्लाम के लिए जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति की शहादत है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक।